Hey everyone, thank you so much for watching Musical Shades of Prapti. I am Prapti Kudapkar and welcome to yet another sit down Saturday video. So some days you just feel off for no reason or something happens and your whole mood is ruined after that. If you relate to this thing, then I bet you should watch this video till the end. ये टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए. So then I started monitoring myself कि how do I deal with this situation? What are the things that I do to sort of lift my mood instantly? Like by instantly I mean very. It's not something like a part of your skincare or a part of your daily routine stuff. It's something that you do not every day, not every now and then, but only when you feel off or when your mood is not okay or when something has happened with you which just ruined your mood. So these are the 5 things I do to lift up my mood instantly. Number 1, just start counting the things you're grateful for. मतलब ये तो मैं हमेशा ही करती हूँ. Like this is my number 1 thing to do. If I'm feeling low, if कुछ तो हो ही है और मेरे साथ बुरा, I'll find out the good things out of it. I'll be grateful for literally everything. The food in my plate, the water in my glass, the roof on my head, like literally everything. तो कोई भी चीज़ हो, be it a very small thing or a very huge thing, be grateful for it. Like say thank you so much कि I have a beautiful house, thank you so much that I have a phone with which I could record and stay connected to you people, thank you so much that I have a book, डायरी जहाँ पे मैं सारे सिट डाउन सैटरडेज के टॉपिक स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ. सो बी ग्रेटफुल फॉर लिटरली एवरीथिंग, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर टीचर्स, एवरीथिंग. एंड सी हाउ योर मूड इंस्टेंटली गेट्स शिफ्टेड. बिकॉज जब आप बाकी चीज़ों के बारे में पॉजिटिवली सोचते हो ना या बोलते हो, it just lifts your mood and you feel very happy. Number 2, something that really makes me happy and it just instantly makes my mood better. It is none other than playing a song out on my speaker on my phone and just dancing on it. Or sometimes if I'm not in the mood of dance, I'll just put on some karaoke's and just start singing. I'll just jam with it and I really feel very better after that. And agar you love to do all this, if you are someone who enjoys singing, if you are someone who enjoys dancing, I bet you should do this for sure. If you are feeling low the entire day, you go dance for a while. ज़्यादा भी नहीं बोल रही, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट एक गाने पे नाच लो सिर्फ. इफ़ यू आर समवन हु एन्जॉयज सिंगिंग, इफ़ यू आर समवन हु एन्जॉयज डांसिंग, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. बिकॉज इससे जेन्युइनली आपका मूड बहुत इंस्टेंटली, लाइक विद इन 2 सॉन्ग्स यू संग और विद इन 2 सॉन्ग यू डांस्ड ऑन, आपका मूड हो जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास, टॉप नॉच, वेरी नाइस. ओके, सो मैं तो ये करती हूँ. सो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू डू दिस टू बिकॉज आई रियली एन्जॉय दिस वन. ओके, नंबर 3, इट इज़ नन अदर देन एक्सरसाइज. तो जेन्युइनली बताओ तो मेरे को पहले एक्सरसाइज करना नहीं पसंद था, बट देन आई एम लाइक, मेरे पापा को देख के ना मुझे भी ऐसा लगा कि यार इफ ही इज डूइंग एट हिज दिस एज, देन व्हाई एम आई नॉट डूइंग एट माई एज, जहाँ पे मुझे करना भी चाहिए. देन उसके बाद वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था मेरा मेंटली कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे वर्कआउट करना है. बट वो भी मेरा ऐसा डाउनफॉल हो गया जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू वेक अप अर्ली इन दी मॉर्निंग. वो वजह से मैं स्किप कर देती थी वर्कआउट कि मेरे को सुबह सुबह ही वर्कआउट करना, उसके बाद मैं नहीं करूँगी. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. बट ये मैं अचानक इसमें क्यों बोली मुझे पता नहीं, सॉरी गाइज. हाँ, सो यू नो जब हम सुबह उठते हैं एंड द मूड इज़ वेरी, क्या बोलते हैं, नींद से अचानक भी नहीं, सॉरी, नींद से उठे हैं मस्त से, वो जो उठने का फ्रेश मूड रहता है वो तो नहीं रहता. बट हाँ, आई विल टेल यू, व्हेन यू गो एक्सरसाइज आफ्टर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू कम बैक फ्रॉम द वर्कआउट, योर मूड विल बी आहा इतना फ्रेश, मतलब पूछो मत. एंड एक्चुअली उसके बाद तुम्हारा पूरा दिन भी वही मूड पे रहता है और एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस. यही अगर तुम लेट 9-10 बजे उठोगे, ऑफकोर्स यू आर नॉट गोना वर्कआउट आफ्टर दैट.
जितना मैं अज्यूम कर रही हूँ। कभी तो 9 बजे उठ के आपके पूरे दिन का मूड देखो, एंड कभी 6 बजे उठ के आपके पूरे दिन का मूड देखो, एंड जस्ट कंपेयर इट, बिकॉज आई नो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई वांट यू टू एक्सपीरियंस इट टू। तो तुम्हें ही खुद से ही पता चल जाएगा what is default and what is not default. So exercise is must guys. 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, तो 2 मिनट बहुत कम होता है, 5 मिनट 10 मिनट तो you should work out and that will instantly change your mood. Number 4, breathing exercise. तो there are various breathing की exercise, but what I like is the 7 seconds का exercise, जिसमें you breathe in for 7 seconds, like 1 2 3 4 5 6 7, then hold for 7 seconds, 1 2 3 4 5 6 7, and then release for 7 seconds, 1 2 3 4 5 6 7. And this exercise जब आप ये करते हो ना, तो you're counting the numbers in your mind, तब आपके दिमाग में there is no other thought than that. And इससे if you're overthinking also anytime, you should do this. एंड तो थोड़ा शांत हो जाएगा माइंड. इट विल रियली हेल्प यू काम डाउन. ओके, तो नंबर 5 इज समथिंग दैट माई फैमिली मेम्बर्स डू एज वेल. ओके, दैट इज वॉचिंग कॉमेडी, वॉचिंग समथिंग दैट रियली एक्साइट्स यू, और जो तुम्हें बहुत पसंद हो. अभी जैसे कि व्हेन आई वाज स्मॉल, तभी हम लोग तारक मेहता देखते थे, बिकॉज ओल्ड एपिसोड्स. एंड उसके बाद जो हमारा मूड लिफ्ट हो जाता था ना, लाइक एवरीथिंग जस्ट स्टार्ट्स फीलिंग बेटर आफ्टर दैट. अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद से, लॉकडाउन में से ही, वी जस्ट लव महाराष्ट्र जी हास्य जत्रा, एंड ओ माई गॉड, वी लिटरली वॉच इट whenever we are happy also we watch it, when we are sad we watch it, when we are not in a good mood we watch it. So watching comedy will literally lift your पूरा मूड. ठीक है, कपिल शर्मा शो है हिंदी में, कुछ भी देखो जो आपको पसंद हो, बस आपका मूड लिफ्ट होना चाहिए वो चीज़ देखने से. ऐसा मत करना कि यू आर गोइंग एंड वॉचिंग बिग बॉस और स्टफ जहाँ पे ऐसा झगड़ा झुगड़ी होता है. नो, वॉच समथिंग दैट इज पीसफुल, ओके, एंड विच you would love to watch. You could also watch my videos. Okay, so this was it for today's video. Please let me know तुम्हें sit down Saturday videos कैसे लग रहे हैं, and मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दो, अच्छा बुरा कुछ भी हो, I'll take it and so that I could improve for you all. ठीक है, बाकी I'm gonna go now. I'll meet you on Tuesday. And if तुमने ये पिछले ट्यूसडे का व्लॉग देखा नहीं होगा ना, बहुत अच्छा है और बहुत छोटा सा स्वीट सा है, देख लो जाके. ठीक है, बाकी नेक्स्ट ट्यूसडे मैं तुम्हें मिलूंगी एक बहुत टाइम पेंडिंग वाले ब्लॉग के साथ, क्योंकि मैंने वो पोस्ट ही नहीं किया. एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई डोंट नो, आई डिडंट हैव टाइम टू एडिट इट, एंड इवन इफ आई हैड द टाइम टू एडिट इट, आई एंडेड अप एडिटिंग द अदर ब्लॉग, जिसके पार्ट्स चलते गए, जो अभी लास्ट ट्यूसडे ही खत्म हुए. सो मैं ज़्यादा बड़बड़ ना करते हुए आई एम गोइंग, बाय बाय, सेंडिंग यू लव. और हाँ, खुश रहो यार, बाय.